मैंने उस दिन यही सोचा था, मैंने अपनी मदर से बोला जो होगा देखा जाएगा। अब काला कोट पहना है तो डरने के लिए तो नहीं पहना है, जस्टिस के लिए फाइट करूंगा, देखते हैं। और मैंने कहा कि अगर हम नहीं फाइट करेंगे किसी के लिए, किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, किसी के साथ क्रुएलिटी हो रही है और ऑफिशियल क्रुएलिटी हो रही है और अपेक्स कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन हो रहा है, अगर वहां पर मैंने अपनी अगर आवाज नहीं उठा पाई तो फिर कब अपनी आवाज उठाऊंगा? तो फिर ये मेरी किताबें पढ़ने का फायदा क्या? Good evening, everyone. We are here today with another session, another enriching session, rather. We have with us Advocate Dipankar Kumarji, and at Super Lawyers, as we believe that in sharing experiences, we are not only motivating young legal minds, but we are motivating and creating a sense of legal awareness everywhere. With esteemed industry people like our guest for today, Mr. Dipankar Kumarji, we'll be starting with this session. First of all, a very good evening, sir, and a very warm welcome from the entire Super Lawyers team. Sir, at the very outset, the question which almost intrigues everyone, whoever is so successful and determined in their own fields, is that what led you to choose law or to believe that indeed legal profession is your calling? If you could elaborate on that, sir. Thank you so much, Akash, and very good evening. And thank you for inviting me. I'm very grateful to you. So, first of thing, I want to tell you that I joined this profession very late because right now I have crossed 40s and I graduated law in 2018. And before that, I have done several things. I have done BTech also, have done Bachelor of Arts, Masters in two subjects. Several things I have already done. So I came in legal field in 2018. And before coming into this field, several cases were filed against me. And in my family, I have seen so many litigations, property disputes, and other things were there. So this was the main reason why I joined this profession. So you have been intrigued with law in a very practical sense even before you have joined here. So that just adds a spark to your trajectory, because usually we find people who are only theoretically interested, then they eventually venture out into the professional field. For you, it has been a professional acquaintance and then embarking upon this journey. That's really interesting to hear, sir. So, sir, were there any kind of challenges at the very outset when you decided to study law, or anything noteworthy which you would want to mention? Definitely. When I was studying in college, I want to say clearly, I want to mention that I was not studying. Okay. मैंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की थी। दैट Okay. इज वेरी ट्रू। एंड जस्ट मैं नाम मात्र के लिए पढ़ रहा था। मेरा फोकस एक्चुअली इस वजह से था, दैट मेन रीजन बिहाइंड दैट कि सो मेनी केसेस वर देयर इन माय फैमिली, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, एंड सो आई वाज वेरी बिजी इन दैट आल्सो. So Hmm. even I was not having enough time to study, but Okay. I was continuously in contact with the seniors and the High Court and District Court. I was regularly in touch with some famous advocates of Lucknow also. So I was regularly in touch. मैं उनके साथ में था, उनके साथ मैं कोर्ट्स भी विजिट करता था। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था कि आई वांट टू डू समथिंग इन दिस फील्ड। एंड वन मोर थिंग दैट कि मैं मेरी फैमिली के जो डिस्प्यूट्स थे, मुझे बाहर निकालना था अपनी फैमिली को। वो भी एक Okay. बहुत बड़ा रीजन था। तो Exactly. वो एक स्पार्क जो आपने बोला है कि वो प्रैक्टिकल और वो दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी। तो मैं कॉलेज की पढ़ाई में तो मैं अच्छा नहीं था, क्लियरली आई वांट टू से। बट आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू ज्वाइन मोस्ट, मतलब ही इज नोन एज अनक्राउंड किंग ऑफ द लखनऊ हाई कोर्ट। एंड सिविल के फील्ड में उनको भी किंग कहा जाता है, जिनको मैंने ये डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट, जिनका चैम्बर मैंने ज्वाइन किया और जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। That is very inspiring, sir. And that just once again proves a very age old saying that where there's a will, there's a way. Even though you were embroiled in so much of personal struggles at that point of time, you still found out your way. And that just inspires everyone in whichever situation of life we are. If we determine something, we can go on. Thank you, sir, for your response. So, sir, since nowadays we have this discussion going on about the difference in ethics and work culture at both this trial court and high court levels, and being a person from the industry who has hands-on experience in both these sectors, we would really want to understand from you your perspectives and first-hand experiences in what is the difference in the work culture or attitudes at both these levels, trial and high courts in India generally. So first thing is I used to see the professionalism is missing at trial court and district court. So I can give you one example. Like when we appear in applications, so application used to take up at 12 in Lucknow district court. So that time, so many advocates they used to gather like सब्जी मंडी और वहां पे हम चिल्लाते हैं कस कस के, मेरा ये है, मेरा वो है, इस तरीके से वहां पे वो होता है। और कैसे नंबर आता है, मतलब वेनेवर मैं वहां पर जाता हूँ तो वो मारा मारी होती है वहां पर कि वो
कैनॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स की वो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और समटाइम्स जो लिटिगेंट होते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, वो हमारा पेन नहीं समझ सकते, क्योंकि when we appear in high court, there we have AC, air condition and everything, and we wear a proper uniform, and there is some ethics and professionalism is used to follow in the high court. But in trial court everything is missing. And even sometimes क्या होता है कि when मैं हाई कोर्ट से गया वहां पर, और वहां पर जाके पता चलता है कि आज बाइकआउट हो गया, आज स्ट्राइक हो गया, सडन, मतलब किसी भी टाइम, एट एनी टाइम वहां पर कुछ भी हो सकता, किसी की डेथ हो गई, किसी की लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया। तो वो सारी चीजें, वो बहुत ही इशू होता है कि व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम हाई कोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या समटाइम्स कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके हाई कोर्ट से दूर है, तो एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम होता है। और वहां पर एक सबसे बड़ी ये चीज हमें फेस करनी पड़ती है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि जब हम कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजमेंट वहां पर रखते हैं, तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि समटाइम्स द मजिस्ट्रेट यूज टू से कि इसको आप हाई कोर्ट में ही दिखाइएगा, आप यहाँ के लिए बहस करने आए हैं, यू केम हियर, आप यहाँ के लिए बहस करिए, और कुछ हो वकील साहब बताइए, ये आप हाई कोर्ट का हाई कोर्ट में ही रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में रखिएगा। तो हम वहाँ पे लॉ पे जाके बहस करना चाहते हैं, बट वो हमें अलाउ नहीं करते, और हमारे प्रॉपर यूनिफॉर्म में वो देख के पहले ही बोल देते हैं आप हाई कोर्ट से आए, लग रहा है। तो ये So सब बड़ा डिफरेंस मुझे दिखता है, मतलब ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में। वो डिफरेंस होता है, एज वी ऑल नो कि वहाँ पर, अगर मैं लखनऊ हाई कोर्ट की बात करूँ, आई हैव अपीयर्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट, रिसेंटली आई हैव अपीयर्ड इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, एंड हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, एंड सिक्किम हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। सो एवरीवेयर आई अपीयर्ड, एंड सो सबसे पहले मुझे अच्छी चीज लगती है कि वहाँ मुझे प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना मुझे बहुत पसंद। वो जो हम गाउन बैंड और पूरा कोट और सारा कुछ पहन के जाते हैं, मुझे सबसे अच्छा लगता है, और मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाता है हाई कोर्ट में। जब मैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में खड़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद को देख के, मैं मिरर में देख के, कि वहां से मेरा आधा से ज्यादा कॉन्फिडेंस यूनिफॉर्म पहनते ही बढ़ जाता है। सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे दिखता है डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट में। और एक सबसे बड़ी चीज दिखती है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये होता है कि यहाँ पर क्लाइंट को जिस तरह से जो वहाँ के लोकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो एक उनको ट्रीट करने का तरीका होता है कि मिसगाइड बहुत किया जाता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। सो उस वजह से वो, मतलब एक हमारे प्रोफेशन में जो एक उनका जो ट्रस्ट है, वो नहीं अच्छे से बनता, मतलब दे यूज टू ट्रीट कि वकील ऐसे ही होते हैं, वो मिसगाइड ही करते हैं। ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पर वो जो प्रोफेशनलिज्म की मैंने बात की, वो वहाँ पर मिसिंग मुझे दिखता है। कि मतलब बस पैसा आना चाहिए, कि कैसे भी क्लाइंट को कुछ भी, मतलब अगर मैं एक एग्जांपल मैं अपने प्रोफेशन में बोल रहा हूँ, कि समटाइम्स वी यूज टू सी कि रिकवरी सूट फाइल होता है, जहां पर हमें एक जो है फी डिपॉजिट करनी पड़ती है। और समटाइम्स मैंने देखा है कि बिना कोर्ट फी डिपॉजिट किए लोग केसेस को फाइल करा देते हैं, और बाद में वो उस पर डिफेक्ट लगता है और वो डिसमिस होता है कि कोर्ट फी प्रॉपर नहीं थी या कम थी, या और उसका अल्टीमेटली लॉस फिर लिटिगेंट को झेलना पड़ता है। तो दीज थिंग्स आर, मतलब मैं बिल्कुल ओपन तरीके से बोलता हूँ, आई डोंट नो। सो ये डिफरेंस मुझे दिखता है। अंडरस्टूड सर, बहुत ही बारीकी से आपने समझाया है ये डिफरेंस। वी कैन ऑल सॉर्ट ऑफ रेजोनेट विद दिस डिफरेंस कि अभी अगर एकदम शुरुआती स्टेज पे ही कुछ गलत हो जाए तो लॉन्ग टर्म में तो जस्टिस डिनाइड का सिलसिला होगा, एंड जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाई का सिलसिला भी चलता रहेगा जब तक शुरुआत में चीजें ठीक तरीके से ना हो। So all our viewers and this platform will definitely benefit from the way you have given out a differentiation. मुझे ये लगता है आपके व्यूज से कि there is more of a very rustic approach at the trial court levels and a more sophisticated approach towards the higher court levels. Drawing from this conclusion, is there any particular case or experience which has mattered to you the most at trial court or high court level? Something which you can anonymously maybe describe the experience, any particular case or situation that was remarkable in your career trajectory. So one of the case I appeared in Faridabad district court. There was a apprehension of arrest and the complaint was registered at the police station of Faridabad. That was a case of my close friend. So apprehension of arrest was there. So I find a anticipatory bail. And in Uttar Pradesh, it's not common. Where you can file, but they do not provide anticipatory bail in the case of apprehension of arrest when the FIR is not registered. If FIR is registered, then you can file. So in Faridabad, I filed anticipatory bail, and due to the apprehension of arrest was there. So I filed and I appeared, and I found in Faridabad district court, it's a very new campus. So I found वहाँ पे वहाँ का environment बहुत अच्छा था, और वहाँ मुझे थोड़ा सा डिफरेंस दिखा, मतलब यूपी से बहुत ज़्यादा बेटर थी वहाँ की कोर्ट्स। एंड कोर्ट्स ने जो मजिस्ट्रेट थे वहाँ पर, दे हैड प्रॉपरली, और उन्होंने मुझे वो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की, और वो मुझे
2 से 3 डेट लगी थी, कॉल फॉर रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद वो इमीडिएटली मिल गई थी। एंड मुझे बहुत हैप्पीनेस मिली थी। एक तो फ्रेंड का था, क्लोज फ्रेंड का केस था, और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि वहां पर मुझे अपना जो आर्गुमेंट थे मुझे वो प्रॉपरली करने को मुझे फरीदाबाद कोर्ट में मिले थे। और रिसेंटली एक और मैं ट्रायल कोर्ट का अगर मैं बात करूं तो मैं द्वारका में एक केस में अपियर हुआ था। तो वहां पर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे पहले ऑलरेडी कंज्यूमर केस डिसाइड हो चुका था चंडीगढ़ में, एंड द सेम कॉज ऑफ एक्शन पे यहाँ पर उन्होंने एक डिफेमेशन का वो फाइल किया था। जो उसमें अपोजिट पार्टी थी उन्होंने दिल्ली में। तो मैंने उसमें 7-11 की एप्लीकेशन मूव करके मैंने उसको डिसमिस करवाया था। और दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक्सपीरियंस ही मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। और अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो यहाँ पर मैंने एक मेरा 376D का मैटर है, गैंगरेप का केस था। उसमें जो है, जो विक्टिम है वो वाइफ है, वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट ही गैंगरेप का केस लगाया था। तो 376, और उसमें उनके कुछ रिलेटिव्स एंड उनके कुछ फ्रेंड्स को उन्होंने falsely एलिगेट किया था। एंड सी फॉरगेट दैट कि व्हेन सी हैड मेंशन इन द एफआईआर द डेट ऑफ इंसिडेंट in the month of March, he has mentioned, and in the month of March, the date which she had mentioned in the FIR, in that date, she was giving a statement under 164 of CRPC in the Unnao district court। जिस केस में उन्होंने इंसिडेंट मतलब दिखाया कि मेरा रेप हो गया लखनऊ में, सेम डेट पे वो वहां पर 164 का अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रही थी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट को। तो वो मुझे हाथ लग गया था वो स्टेटमेंट, और मैंने फिर उसको किया। और उस केस में मैंने विक्टिम के अगेंस्ट मैंने एफआईआर भी करवाई। वो 182 एंड 211 में फाल्सली एफआईआर कराने के उनके अगेंस्ट एफआईआर भी हुई। और मेरे क्लाइंट को मैंने उनको विदाउट अरेस्ट हुए मैंने हाईकोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल दिलवा दी थी। जितने भी उसमें 2 लोग अरेस्ट हो गए थे, लेकिन 2 लोग मेरे पास आ गए थे और वो अरेस्ट नहीं हुए थे, और उनको हाईकोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिली थी। That was really a remarkable thing, given कि आपने बताया कि वहाँ पे इसका प्रचलन उतना है नहीं, anticipatory bail and all का। Even though after that, since you have navigated this thing so prudently, that calls for a lot of appreciation, sir. So यहाँ से हम लोग को शायद पता चलता है कि the keen eye for detail or the attention for detail is so important in this legal profession. And stories like this or incidents like this from experienced people like you, when it comes down to students like us and everyone who is learning law and involved in this field, it's very motivating. Even though there are a lot of challenges, prima facie, it may seem very confusing, but with a keen eye for detail and determination, we can all succeed. Thank you for sharing these insights, sir. It will be really helpful for everyone who is following us today and who will be watching this. Let us move on to the next question. According to your profile and today's discussion, one thing we have noticed that you have a lot of legal writing on your professional plate. And just now, as you said, you have this eye for detail. So, what skills do you think should be important in a law student? Because drafting, legal writing, yes, up to they are the basic tricks of the trade. So, what would be your advice to young juniors and young professionals, law aspirants, how to develop our legal writing skills? Or what are the things we should keep in mind? फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन माय आंसर इज ओनली रीडिंग रीडिंग रीडिंग। मैं सबसे प्रायोरिटी देखता हूँ कि इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद रीडिंग, अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है, सो यू हैव टू बिल्ड, you have to build that habit. You need to read, because in this profession I learned from my senior right now is the age of 79, and yesterday I met him and I asked about his health. So he said कि I'm okay, I'm perfectly fine, but कल रात में सो नहीं पाया। So मैंने पूछा why sir, क्या कल पूरी रात में केस की तैयारी कर रहा था। सो वो इतना उनकी बात मुझे कल, मतलब ये कल ही का इंसिडेंट है, मतलब इट टच्ड मी अ लॉट कि वो 79 की एज में आज भी अपने केस के लिए इतना वो रहते हैं कि वो मतलब अगर वो चाहे आराम से सो सकते हैं। ये जो लॉट ऑफ जूनियर उनके सब काम करने वाले हैं, बट वो पूरी रात उन्होंने केस को तैयार किया और मेरे से बोले बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा टायर्ड दिख रहा हूँ। इवन एक केस के लिए पूरी रात जगना। तो इस पर्टिकुलरली अगर मैं इसकी बात करूं कि स्किल्स जो हैं राइटिंग और ड्राफ्टिंग स्किल्स के लिए, सबसे पहली चीज है कि आपको रीडिंग हैबिट को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर रीडिंग हैबिट नहीं है, जजमेंट्स को पढ़ना, बुक्स को रीड करना, केसेज की हिस्ट्री को पढ़ना, वो जब तक आप प्रॉपरली थॉरोली रीड नहीं करते हैं, if you are not prepared for that, then definitely you will face problem while drafting and while writing anything, because thoughts हमारे मन में आते हैं, हमें उसको एक्सप्रेस कैसे करना है वो तभी आएगा जब आप रीड करेंगे, क्योंकि जजमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल आई कैन शेयर
कि if FIR is registered against someone and if FIR registered is came to you and you just saw how many sections are mentioned in the FIR and just go through the content of the FIR. And after that, you started thinking that now I can draft the anticipatory bail or I can draft the application. So that time you have to mention the fact and the background of the case. So you need to communicate with the litigant also, the accused also, your victim also. समटाइम्स हम विक्टिम के साइड से होते हैं, अक्यूज के साइड से होते हैं, जिसकी भी साइड से होते हैं, तो वहां पर हमें उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेशन करना और एफआईआर को पढ़ना। अभी एक और मैं इंसिडेंट अभी शेयर करना चाहूंगा कि एक सेम एफआईआर को अभी रिसेंटली मेरे पास केस आया हुआ है 409 एंड 425 406 का एफआईआर था। सो उस एफआईआर को मैंने रीड किया और उसी को मेरे जूनियर ने रीड किया, और दोनों के डिफरेंस क्या है कि मैंने उससे बोला कि मैंने कहा यू कैन फाइल एंटिसिपेटरी बेल इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट and I am going to file in the writ petition in High Court for FIR questioning. And if I will get a chance, so I will try to convince the High Court to send the matter to mediation because matter was related with the personal transactions, but the fake allegations were made in the FIR. So that time, what I was thinking and what my junior was thinking, वो दोनों में रीडिंग का क्या हुआ है, रीडिंग का डिफरेंस जो कंटेंट था वहां से वो कंक्लूजन जो मेरे जूनियर ने निकाला, उसने कहा कि सर इट इज द बेस्ट वे टू गो फॉर द एंटिसिपेटरी बेल एंड यू वांट टू गो विद हाई कोर्ट में रेट फाइल करना, आपको ये बेटर लगा। तो रीडिंग 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 मतलब वो जितनी बार हम रीड करते हैं किसी भी चीज को, हर बार आपको उसी पैरा से कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स इनहेंस होने लगती हैं। और उसके अलावा लॉ पे तो आपका कमांड होना चाहिए, क्योंकि लॉ पे डेफिनेटली डे बाय डे हमारे नए जजमेंट्स आते रहते हैं, उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। और लेटेस्ट जजमेंट जितने आते हैं अगर आपको उनको गो थ्रू नहीं कर रहे हैं, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम। सो जो पढ़ाए जाते हैं क्लासेज में, तो उसमें इतना बड़े बड़े जजमेंट्स होते हैं, उसको समझना और उसका इंटरप्रिटेशन निकालना, सो उसको इतने बड़े बड़े एक एक लाइन को, ये मेरे सीनियर ने भी सिखाया था कि आपको पेंसिल या पेन रख के एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को, अगर आप उतना पेशेंस नहीं आपके अंदर अगर आप पढ़ने के लिए, सो देन आपका ड्राफ्टिंग स्किल इतनी जल्दी नहीं इम्प्रूव होगा। There are so many things to note from here. I was just wondering, being a young practitioner myself, कि यहाँ पे जल्दबाजी की कोई गुंजाइश तो है ही नहीं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, जैसे आपने कहा कि एक ही चीज दो बार पढ़ने से दो तरीके का कंक्लूजन वहां से हम लोग निकाल पा रहे हैं। एक ही चीज आप देख रहे हैं, आपके सीनियर देख रहे हैं, दोनों अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। इवन दो थियोरेटिकली everywhere always advocated that read properly, but it is only when we come to professionals like you that we understand that what exactly is going in depth and reading in between the lines. So this is one practice which everyone should also inculcate, and we are getting an amazing opportunity to understand things from the person who is in the field himself, that a reading habit is something which will always give us gains. Going ahead, sir, since we have been talking about trial courts, high courts, there is one thing which I would like to understand from you. After COVID-19, there has been a huge digitalization. So how much is the preparedness in terms of infrastructural condition of the lower courts when it comes to digitizing it? Or rather, any comment on the infrastructural condition of district courts in general? What are the courts that you have been to and you have seen कि हाँ उनका digital setup है, properly online hearings and all की सुविधाएं है, and कहाँ पे you have encountered कि no, these courts yet to develop? आई थिंक इन उत्तर प्रदेश इज येट टू डेवलप। यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वो नहीं हो पाया है, and but I have appeared in Delhi and other states, so I can easily appear from Lucknow. So I have several cases in Delhi trial courts और दिल्ली के district courts में I have cases. So वहाँ पर मैं easily यहाँ से appear हो जाता हूँ, and so वो वहाँ पर तो it's good, but in Uttar Pradesh is yet to develop, and because infrastructure is also the issue. And here sometimes I used to see that some of my colleagues also, they are not in favor of this digitalization. They think that when we appear in court and when we can argue in front of the magistrate or the judge, so that is the better way. And if you are appearing from home or some other place, this is not the good thing, and they are not in favor of. Even some of the bar members and the associates of the bar also, they are not in favor of these things. So they used to oppose these things. Like if I want to appear from the high court and like I don't have time to go physically in district court, so sometimes they used to say, okay, no, I'm not going to argue, just put up this matter for further date. So he has to come, but I'm in favor of, because it's a very good thing. Like if I'm sitting in Lucknow, and if you are sitting in any city or any state,
And it's a very good thing that if you have case and if you are getting cases from other places, so you can easily appear through this laptop, through your internet, and these things are very common now. Everyone has a mobile right now. हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, एवरीवन इज यूजिंग. बट उसका बेस्ट यूज कहाँ पर हो सकता है इस प्रोफेशन में? एटलीस्ट हम जिस प्रोफेशन में हैं, अगर मैं वहां पर बात करूं, तो यहाँ पर वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन. और इस डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही आज की डेट में, मतलब आफ्टर कोविड, इतना सारा कुछ पॉसिबल हुआ है. क्योंकि आई हैव सीन, जब कोविड के बाद जब कोर्ट्स ओपन हुए थे, सो कोर्ट्स में इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, और जो हम सबको डेवलप करनी पड़ी. जैसे हमारे हाई कोर्ट्स की अगर मैं बात करूं अपने यहाँ पर, तो हमारे ई फाइलिंग सेक्शन में आपको डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट थी, एक आईडी पासवर्ड की रिक्वायर थी. वो जो पहले चीजें, हम बहुत सारी चीजों को सोचते थे कि ठीक है, नहीं है तो काम चलता है. बट आफ्टर दैट हमें ये बहुत ही सीरियसली उस चीज़ों को लेना पड़ा, क्योंकि आपको घर से निकलना है, और वो इन्वायरमेंट ही उस समय ऐसा, एटमॉस्फेयर ही ऐसा हो गया था कि एवरीवन वाज अफ्रेड कि हम घर से बाहर जाते हैं तो वी आर नॉट सेफ. कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी को हो सकता है. इवन मुझे भी हो गया था, तो मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ था, तो आई नो कि वो कंसिक्वेंसेस क्या थे. बट दैट टाइम पे ये डिजिटलाइजेशन ने कैसे हेल्प किया. इवन एक बड़ा हाई केस मेरे एक रिलेटिव का हो गया था, जहाँ पर मुझे उस केस में, मतलब I was feeling blessed कि that time I was having laptop, I was having internet, and I appeared in that case from my home. And उस केस में भी मुझे कोर्ट से रिलीफ मिल गया था. तो लाइक आपकी तबीयत खराब हो गई एंड आपके साथ या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप कोर्ट वॉक करने में आपको दिक्कत हो गई, तो ये सारी चीजें बहुत ही, मैं सोचता हूँ कि बहुत हेल्प करती हैं कि आप घर बैठ के या कहीं भी बैठ के इतना इजिली. रिसेंटली आई वॉज इन चंडीगढ़. मैं 30 जून को मैं चंडीगढ़ में था, और 1 जून को वन ऑफ माई केस वॉज लिस्टेड इन लखनऊ हाई कोर्ट. एंड आई आस्क्ड माई जूनियर कि जस्ट ट्राई टू मेंशन दैट कि माई सीनियर इज आउट ऑफ स्टेशन. सो बट कोर्ट आस्क्ड कि उनसे बोलो कि वो अपियर हो वहां से. उन्होंने बोला कि उनसे बोलिए कि वो वर्चुअली अपियर हो, एंड हमें इसको अर्जेंट नहीं करना है आज. एंड दैट टाइम आई वाज आल्सो थिंकिंग कि मेरे पास लैपटॉप था, मेरे पास इंटरनेट था, मैं चंडीगढ़ से आराम से वहां से अपियर हो गया. इवन आई वाज नॉट हैविंग फाइल, माय जूनियर वाज देयर इन हाई कोर्ट, so I tried to assist the court from there and I assisted. So मेरे लिए इतना इजी हो गया, अदरवाइज मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. मुझे या तो उस केस में कोई एडवर्स ऑर्डर पास हो जाता, या फिर कोई अगेंस्ट चला जाता मेरी कोई चीज, तो वो सारी चीजें नहीं हुई. तो आई एम टोटली इन फेवर ऑफ दीज थिंग्स. और ये बहुत ही बड़े लेवल पे हेल्प हम सभी को कर रही हैं. अगर मैं पर्टिकुलर लखनऊ बेंच की बात करूं, तो हमारे यहाँ पे डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छे से हुआ है इस बेंच में. और सारी चीजें प्रॉपर, मतलब यू हैव बोथ ऑप्शंस, आप घर से भी अपियर हो सकते हैं, आप वहाँ कोर्ट जाके भी अपियर होते हैं. सो यहाँ पर केसेस की हियरिंग दोनों हाइब्रिड सिस्टम से होती है. एंड बट हाँ, ट्रेंड अभी है. पीपल यूज टू, मतलब लाइक कि उनको कोर्ट में जाके बहस करना अच्छा लगता है. इवन मोस्टली सीनियर्स, मतलब दे लाइक टू अपियर फिजिकली. So we are at a crossroads of development in different ways, but it is ample कि internet की सहायता से justice delayed, justice deny को हम हटा पाए, and we could expedite the entire process of justice, be it COVID, be it any personal crisis, emergency, and even when a advocate like you who has cases in different areas of the country. तो ऐसे सब situations में भी it's very helpful. What I realize is that digitalization push has been bringing in a lot of benefits, but since we are at a crossroads of development and there are always very diverging opinions, that makes entire advocacy fun, is that having different sorts of opinions. So we'll have to just wait and see how this digitalization push slowly goes ahead. So, sir, since we know about your larger social conscience, where you're not just working for your own self, you have devoted much of your time in PILs, public interest litigations, SLPs. And it was also remarkable to see that you fought a particular case where you reinstated the right to education for a particular child. So, drawing on those inferences, sir, I would like to ask, what do you feel about this larger social conscience or social duty which an advocate owes towards the society? And since you are such a wonderful narrator yourself, if you could elaborate with one or two incidents where, being an advocate, you not only put on the gown for your own self, but for a larger societal interest. ये क्वेश्चन का आंसर करना मुझे मुझे बहुत पसंद है. मतलब ये क्वेश्चन कई बार लोग मेरे से पूछते हैं. एंड रिसेंटली आई वाज वाचिंग ए स्पीच ऑफ लर्नेड सीनियर मिस्टर कपिल सिब्बल. तो आई थिंक सभी ने वो देखा होगा जो इस फील्ड में है. वो स्पीच में उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वो जब दिल्ली आए थे, तो दैट टाइम ही वाज हैविंग वन ब्रीफ केस. उनके पास वो ब्रीफ केस था,
एंड आफ्टर दैट वो स्पीच में मैं उसको मतलब मैंने बहुत बार उस स्पीच को सुना। उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि अगेन ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय एसोसिएशन, एंड ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, जैसे मतलब एवरीथिंग, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब कुछ उनके पास रहा, सारी कुछ रही हैं। एंड इस एज में वापस उनको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्यों उनको आना पड़ा। तो उन्होंने जो चीजें उसमें मेंशन की थी, और एक स्पीच के लाइन में उन्होंने बीच में उन्होंने एक मैसेज दिया था कि व्हेन यू केम इन दिस प्रोफेशन एंड योर ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी, देन यू आर नॉट गोइंग टू सक्सेस इन दिस प्रोफेशन। फर्स्ट थिंग कि उन्होंने बोला था कि फ्रॉम द इंडिपेंडेंस यू कैन सी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके इतने सारे लोग हुए उसमें सभी ने लॉ किया हुआ था। वाई? और हम अक्सर हमारे जो हाई कोर्ट के जजमेंट होते हैं, लोअर कोर्ट में भी लिखा जाता है कि लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशन, या याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। तो ये जो वर्ड हमारे नाम के पहले लगाया जाता है कि विद्वान अधिवक्ता, इवन जज के आगे भी नहीं, उनके आगे ऑनरेबल लिखते हैं या हम लिखते हैं, लर्नेड नहीं लिखा जाता। लर्नेड एडवोकेट के नाम के बिफोर ही लिखा रहता है, और हर ऑर्डर में लिखा होता है। ये कहीं आपको नहीं मिसिंग मिलेगा कि वो मिस हो गया, लर्नेड वर्ड मिस हो गया। तो वो चीज उन्होंने बोला था कि इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि यू आर कैपेबल, एंड आपको वो एक डेजिग्नेशन वहां से दी गई कि लर्नेड काउंसिल। सो उसको प्रूव करना वो हमारी ड्यूटी है। एंड व्हेन वी आर रसिंग बिहाइंड मनी कि हमें सिर्फ पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, तो पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। इस प्रोफेशन में बहुत सारे लोग कुछ क्लर्क का काम करते हैं, कुछ केवल केसेस लेके आते हैं या रिफर कर देते हैं कि सर मैं केस लेके आया हूँ, मुझे आप इतना दे दीजिए एंड दैट इज फाइन। वो भी एडवोकेट हैं, दे आर डूइंग, अपना वो काम कर रहे हैं। बट जो हमारी सोसाइटी के लिए ड्यूटी है, जो अगर हम फ्रॉम द इंडिपेंडेंस अगर देखें, जो भी लोग वहां पर गए थे, जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ की और हमें इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए कितना, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एग्जाम्पल है। अगर आप कभी गुजरात जाएंगे, जहां पर एकता नगर में उनकी जो स्टेचू ऑफ यूनिटी लगाई गई है, वहां पर एक लाइट एंड शो होता है इवनिंग में। वहां पर जब उनकी स्टोरी नरेट की जाती है तो उनके कंट्रीब्यूशन को बताया जाता है। सो वो सारी स्टोरीज वो इंस्पायर मुझे भी करती हैं। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना ये मेरा पैशन है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। और लकीली कि मैं इस प्रोफेशन में आया, और आने के बाद ही जो राइट टू एजुकेशन की जो आपने बात की, उसका एक मुझे केस मिला। और वो केस ऐसा था कि वो जब एक्ट बना था, उस एक्ट में सीधा सीधा कहा गया था कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना वो स्टेट की जिम्मेदारी है। कैसे करती है उसका वो प्रोविजन उसमें दिया गया था। एंड आई हैव फाउंड इन सेवरल केसेस कि पीपल यूज टू फिल द फॉर्म, एंड दिस इज द ऑनलाइन प्रोसेस, एंड उसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, एंड आफ्टर दैट ड्रॉ सिस्टम इज देयर। सो पीपल यूज टू गेट, मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा नाम ड्रॉ में आ जाएगा, और ड्रॉ में आने के बाद उनका नाम उसमें आ भी जाता है, स्कूल भी अलॉट हो जाता है, बट आफ्टर दैट स्कूल यूज टू डिनाई दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर एडमिशन बिकॉज वी डू नॉट टेक एडमिशन थ्रू आरटीई, ये ऐसा कह के वो इग्नोर कर देते हैं। एंड उसमें जो बच्चे होते हैं, जो फैमिलीज होती हैं, वो वीकर सेक्शन से होते हैं। इट इज क्लियर मेंशन इन द एक्ट कि पीपल फ्रॉम द वीकर सेक्शन वही इंटाइटल होते हैं उन चीजों के लिए। तो वो वीकर सेक्शन वाले के पास पैसा तो ऑलरेडी नहीं होता है, और इतना पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं कि वो हाई कोर्ट जाके आपका एडमिशन करवा लेंगे। सो दैट टाइम वो केस जब मेरे पास आया कि वो बाय प्रोफेशन द पर्सन वाज ए ड्राइवर, वो ड्राइवर था। अब इतना पढ़ा लिखा वो 8 पास बच्चा, जो जिसका फादर ही 8 पास हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट के बारे में क्या पता होगा। तो मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया यार उसके साथ ऐसा हो गया, तो मैंने आई पर्सनली टुक द एक्शन। मैंने एक्शन लिया और मैं जाके वहाँ के बीएसए से मिला, बेसिक शिक्षा अधिकारी से, एंड आई अप्रोच्ड हिम। उसके बाद मैंने परियोजना अधिकारी से आई मेट हिम आल्सो, मैंने रिक्वेस्टेड, मैंने कहा बच्चे को वहां से मिला है, तो उन्होंने ही सेड टू मी कि ऐसा है वकील साहब, ऐसे बहुत वकील घूमते रहते हैं और एडमिशन नहीं होगा इस बच्चे का। सो देन आई आस्क्ड व्हाई। तो उन्होंने कहा कि बस नहीं होगा, नहीं होगा, स्कूल नहीं ले रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा इट्स योर ड्यूटी, आपको गवर्नमेंट सैलरी प्रोवाइड कर रही है, यू कैन नॉट से लाइक दिस, यू कैन नॉट डिनाई हिज एडमिशन, एंड दिस इज द फंडामेंटल राइट एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर दिस एक्ट ऑल्सो। सो दैट अधिकारी सेड टू मी, वकील साहब हमको कानून ना समझाइए, और जो करना हो कर लीजिएगा। तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा कि जो भी है, उनका नाम था, मैंने मेंशन किया, मैंने कहा कि आप 48 आवर्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, एंड विद इन 48 आवर्स इस काले कोट की ताकत आपको पता चल जाएगी।
आई फाइल्ड द रिट पिटिशन इन हाई कोर्ट। मैंने स्कूल को भी पार्टी बनाया, मैंने उनको भी पार्टी बनाया, and after that the matter was listed in high court and it was argued in detail and instruction was sought from the state. So the counsel for the state appeared and he asked that I am going to ask from the BSN Pariyojana Adhikari why his admission was denied. And the state also convinced me that he is also going to give the instruction to the concerned officer to grant the admission. But after that भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी एडमिशन उस बच्चे का नहीं हुआ। एंड इन बिटवीन मेरा केसेस लग गया दिल्ली में, मुझे दिल्ली जाना पड़ा। एंड उस बिटवीन में 2 डेट्स लगी एंड आफ्टर दैट माय जूनियर वाज अटेंडेड। एंड आफ्टर दैट आई शुड से बहुत ही फेमस जज हैं, उनका नाम मैं अभी मेंशन नहीं करूंगा, उनका इलाहाबाद से ट्रांसफर होके वो लखनऊ आ गए, लखनऊ बेंच में बैठने लगे, उनके सामने ये मैटर चला गया। एंड वो इस तरह के मैटर में बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, और उनके सामने अपियर हुआ और उन्होंने ऑर्डर किया था कि ऑन द नेक्स्ट डेट कि principal and the परियोजना अधिकारी and the basic शिक्षा अधिकारी they need to appear in person and matter was listed before the court and I told that honorable justice that Losses just have the order of 23rd October। उन्होंने ऑर्डर देखा और उन्होंने कहा कि वेयर इज प्रिंसिपल एंड वेयर इज द कंसर्न अधिकारी। उन्होंने कहा कि देयर इज कोई अधिकारी नहीं आया था, कोई नहीं है वहां पर आया था। उन्होंने इमीडिएटली बोला कॉल द रजिस्ट्रार एंड थ्रू सीजीएम उनको विद इन हाफ एन आवर मुझे वो सारे के सारे ऑफिसर यहीं पे चाहिए। और हाफ एन आवर के अंदर वो सारे के सारे अधिकारी वहां मौजूद थे। उन्होंने सीधा बोला था कि मैं सीधे यहीं से सबको जेल भेज रहा हूँ एंड इस बच्चे को एडमिशन वहीं, मैं खुद यहाँ से ऑर्डर पास कर रहा हूँ, इनको वहीं स्कूल में पढ़ेगा। एंड दैट डे द कोर्ट पर पूरा कोर्ट भरा हुआ था एंड आई वाज स्टैंडिंग, मैं डेस्क पे था और पीछे मेरे सीनियर भी खड़े हुए थे। एंड वो दिन मतलब सभी को लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा मैटर होगा और कोई बहुत बड़ा काउंसिल आर्गू कर रहा होगा। और उस केस में वो ऑर्डर जो हुआ मतलब एक लैंडमार्क बन गया और वो बच्चा आज भी पढ़ रहा है उस स्कूल में और क्लास में उसने फर्स्ट पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है। उन प्रिंसिपल को वार्निंग दी गई थी अगर बच्चे को कभी भी उसके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो आपको सीधा जेल भेज दिया जाएगा, और वो ऑर्डर में लिखा हुआ था। एंड उसको केस को आज भी उन्होंने पेंडिंग रखा हुआ है कि अगर कभी भी कुछ होता है तो यू कैन फाइल ए सप्लीमेंट्री एफिडेविट। और उसमें मैंने एक प्रेयर ये भी की थी, मैंने कहा कि इफ पॉसिबल तो हो सकता है कि वैसे तो ये 8 तक क्लास के लिए होता है बट ये 12 तक भी हो सकता है, कोर्ट हैज द पावर एंड दे कैन ग्रांट। सो ये एक बहुत ही मतलब जर्नी मेरी बहुत ही वहां से हुई कि राइट टू एजुकेशन का वो केस था। और वो बच्चा आज भी कहता है कि मेरा एडमिशन मेरे चाचा ने कराया था और मेरी तो पढ़ाई ही कोर्ट से शुरू हुई है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोगों ने कोर्ट को अप्रोच किया जिनको एडमिशन मिल रहे हैं, क्योंकि बड़े सारे जो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं वो क्लियरली डिनाई कर देते हैं कि एमआरटी के थ्रू बच्चे का नहीं लेते, जबकि वो नहीं डिनाई कर सकते, वो उसका बच्चे का राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और वो एक्ट के थ्रू वो सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं, तो वो नहीं डिनाई कर सकते। दिस इज इंस्पायरिंग, दिस इज द सोशल कॉन्शियस जो कभी कभार कॉलेज में कभी कभार यहाँ वहाँ हम लोग बस सुनने को मिलता है कि हाँ इफ यू आर इन दिस लर्नेड प्रोफेशन व्हेन यू आर वेयरिंग द गाउन यू आर वेयरिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आज आई एम श्योर कि दिस वन स्टोरी from insignificance to significance only shows the way you held on to your models, the way you held on to your responsibility and inspiration which you had drawn from Kapil Sibal ji. And it is so contagious. Please go ahead with the next incident, sir. We would love to hear. So there was an incident in Lucknow, we used to call it पटरी दुकानदार, जो जमीन में शॉप्स लगाते हैं, कपड़े बेचते हैं। देयर वाज अ शॉपकीपर, उसके अगेंस्ट में एक केस रजिस्टर हुआ लूट का 392 एंड द केस वाज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 392 ऑफ आईपीसी एंड द मैन केम एट द टाइम ऑफ 10:30 PM नियर बाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आसपास के एरिया यू कैन इमेजिन कैसा होता है, उस स्पेसिफिक एरिया में द केस वाज रजिस्टर्ड एट मॉर्निंग 10:30 AM। एक बंदा बाइक से आता है और चैन लूट के चला जाता है, और जहां पे वो मतलब हॉट ऑफ द सिटी, वहां पे कैमरे एवरीथिंग वाज देयर and the case was registered and the man was arrested and was brutally beaten by the police authorities। so मेरे पास आया है मैटर, मतलब एक्चुअली हमारा काम जो है पुलिस के एक्शन के बाद शुरू होता है, एडवोकेट्स का काम जो है पुलिस के एक्शन के बाद शुरू होता है। हम पुलिस स्टेशन नहीं जाते, बट इन दैट केस आई विजिटेड पुलिस स्टेशन and I tried to meet with the concerned officer of the police station and I asked him because I want to meet the accused। So he said to me, sorry, we cannot allow you। And Mr. Counsel उन्होंने बोला कि वकील साहब आप यहाँ से जा सकते हैं, वो लूट का मामला है, इसमें हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा इट्स ओके मैडम, मैंने बट उनसे एक रिक्वेस्ट मैंने की, मैंने कहा कि कल सुबह 10 बजे आप इनको प्रोड्यूस कर दीजिएगा कोर्ट में, ये आपके लिए भला होगा। अदरवाइज मैं हाई कोर्ट का प्रैक्टिशनर हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, अदरवाइज रेडी फॉर द कंसिक्वेंसेस। तो कहा कि वकील साहब ये सब कानून मुझे मत समझाइए, कानून मैंने बहुत पढ़ा है। तो मैंने कहा इट्स फाइन। मैंने वहां से उठा और मैंने अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था। अगेन पता नहीं उनके थॉट में क्या है, उन्होंने ही सेड टू मी कि उनको बुला के लाइए।
वो बुला के लाए, अंकल ने कि आपका नाम क्या है, मेरे बारे में पूछा उन्होंने। फिर पूछने के बाद वो बोले कि इनको मिलवा देते हैं। तो मैंने कहा मेरे ऊपर एहसान मत करिए, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप किसी अक्यूज्ड को उसके काउंसिल से मिलने से आप मना नहीं कर सकते। और जब मैंने उससे मिला और मैंने उसको देखा, उसको 3rd डिग्री उन्होंने टॉर्चर दे दिया था। एंड दे हैव टोटली वायलेशन ऑफ डीके बसु। डीके बसु इज द फेमस लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो उसका कंप्लीट वायलेशन हुआ था। एंड देन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अबाउट द पुलिस authorities. मैंने कहा कि रजिस्टर लेके आइए, जस्ट शो मी द मेमो वेयर यू हैव मेंशन द टाइम एंड एवरीथिंग व्हेन यू हैव अरेस्टेड दिस पर्सन। हैव यू इन्फॉर्म द फैमिलीज ऑफ दिस पर्सन, फैमिली और फ्रेंड ऑफ दिस मैन। कोई फॉर्मेलिटी उन्होंने नहीं किया था। एंड देन मैंने उनसे बोल दिया, मैंने बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट की। मैंने कहा मिस्टर एसएचओ, इनको आप कल प्रोड्यूस जरूर कर दीजिएगा, अदरवाइज यू हैव टू फेस द कंसिक्वेंस। मैं इतना बोल के वहां से चला आया। And I collected the information at the time of incident. Accused was at home, and it was clearly seen in the CCTV footage that he was at home. So वो CCTV footage मेरे हाथ आ गया जिसमें वो क्लियरली घर में था। एंड सेम टाइम पे वो बंदा वहां पे रॉबरी भी कर सकता है और घर में भी कैसे हो सकता है, ये नहीं पॉसिबल था। तो सेम CCTV फुटेज आई ट्राई टू शो द ऑफिसर। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा इसको आप देख लीजिए, एंड इफ यू आर स्टिल मतलब हैव एनी डाउट तो आप इनको प्रोड्यूस कर दीजिएगा, अदरवाइज इसके कंसिक्वेंस। एंड आई प्रिपेयर्ड हैव कॉर्पस रिट पिटीशन इन टू मतलब फाइल इन द। वो मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था, लेकिन इन बिटवीन उन्होंने उसको वहां से रिलीज कर दिया थाने से। एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली आई रश टू द हॉस्पिटल एंड मैंने उनका मेडिकल करा दिया। मेडिकल में सारी इंजरी आ गई, एंड इमीडिएटली नेक्स्ट डे आई फाइल द रिट पिटीशन इन द हाई कोर्ट। एंड इन दैट केस बहुत ही स्ट्रांगली मैंने डीके बसु को गाइडलाइंस को आई मेंशन इन द रिट पिटीशन कि व्हाट आर द गाइडलाइंस इशू बाय द डीके बसु, and these guidelines are also displayed in every police stations, and still police officials are violating these. Why it is again and again happening in India? You have heard many cases police torture, used to torture. So I also sent the complaint to Human Rights Commission also. Human Rights Commission immediately took the action and they asked the DGP to appear after 7 days. And in that case, that time, senior judge of the High Court passed an order and asked the police officials why it happened in the police station. And in that case, I got the relief. Case is still pending, it going on. And in that case, several police officers, those are on probation period, उनके अगेंस्ट भी वो इंक्वायरी सेटअप हुई, बहुत सारी चीजें हुई, और मतलब वो उनकी जॉब भी जा सकती है, वो हुआ। और वो बंदे की जो शॉप है आज बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ वो अपनी शॉप को वापस उस चीजों को लगा पा रहा है। और इन बिटवीन क्या हुआ कि जब मैंने ये केस फाइल किया था तो पुलिस ट्राई टू क्रिएट प्रेशर अपॉन मी ऑल्सो। They have tried to contact me at my home. 5 police jeeps reached my home in the night when the case was listed. So they try to create pressure कि पुलिस रस्सी को सांप बना देती है, ऐसा कर देती है। और मेरे काफी साथ के लोगों ने भी समझाया कि पुलिस के अगेंस्ट मत जाओ, बिकॉज तुम्हें यहीं पे प्रैक्टिस करना है। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, तो मैंने उस दिन यही सोचा था। मैंने अपनी मदर से बोला, मैंने कहा मम्मी जो होगा देखा जाएगा। अब काला कोट पहना है तो डरने के लिए तो नहीं पहना, जस्टिस के लिए फाइट करूंगा, देखते हैं। और इमीडिएटली मैंने 2-3 लेटर कमिश्नर एंड डीजीपी को पोस्ट कर दिए थे कि मुझे थ्रेटनिंग मिल रही है। एंड वो ट्राई टू मतलब अप्रोच कर रहे थे, कंटिन्यूअसली मुझे अप्रोच कर रहे थे कि कैसे भी मैं वो रिट पिटीशन को वापस ले लूं। सो वहां से मुझे उस केस से मुझे बहुत हाइक मिली थी। एंड जो करेज जो मुझे दिखाना चाहिए था वो मैं उसमें एबल हो पाया था। और मैंने कहा कि अगर हम नहीं फाइट करेंगे किसी के लिए, किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, किसी के साथ क्रुएलिटी हो रही है और ऑफिशियल क्रुएलिटी हो रही है और अपेक्स कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो रही हैं, अगर वहां पर मैंने अपनी अगर आवाज नहीं उठा पाई तो फिर कब अपनी आवाज उठाऊंगा? तो फिर ये मेरी किताबें पढ़ने का फायदा क्या? Exactly, sir. There's only one statement which keeps resonating in my ears जो आपने कहा कि अगर काला कोट पहन लिया है तो डरना क्या. Both of your incidents which you mentioned, that's so motivating, and at the same time both the school incident and this police incident shows us that at the grassroots level there is a lack of legal awareness and a complete ignorance of whatever is going on. And it is ironic that people who are cushioned in their own luxuries, we keep on discussing about DK Basu, we keep on discussing about constitutional rights, right to education. हर एक college में, school में भी in legal education, people teach this, people learn this, but people who are facing it, they are unaware. So ऐसे situations में, I guess, experiences like you, instances like the ones you have shared, this will be very motivating. Truly, sir, both of these incidents has enthralled me, and I'm sure all our viewers and everyone who is connecting with this channel now, Super Lawyers team, everyone would be so proud of our own profession. It's only because of people like you that embark upon such personal stories that have social consequences that we feel proud of the profession.
we feel proud of each other and we are also motivated to have this thought process कि हाँ हमें भी आगे जाके करना है, हमें भी सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए करना है. This is the larger social conscience. Now let us move on to personal experiences and anecdotes. What would be your suggestion for the young lawyers, as in first generation lawyers who are just navigating the landscape, who may become apprehensive at times, who may become doubtful at times? What is your suggestion for these young lawyers? Right now, what I'm seeing when people are studying law and when they are studying in college or studying in NLU also, so वो internship के लिए आते हैं. They used to internship at district level and high court also. Some of them they used to do internship at Supreme Court also. What I found last year, few students from Uttarakhand, they came to me and they asked to do internship with me. So I said yes, and उनका reference था, and they joined me, and I helped him to get the pass, and everything was done. So 1 week they came regularly from morning to evening. They were with me, and after that, what happened? In the morning they used to meet me, sir, good morning, and after that, in the evening they used to say good evening, sir. बस इसके बाद पता नहीं वो कहाँ थे. एंड आई डोंट हैव इनफ टाइम कि मैं एक एक से पूछने जाऊं कि आप कहाँ पर हो, किस कोर्ट में बैठे हो. मेरे पास इतना टाइम नहीं है. एंड उसके बाद मंथ के एंड में वो आते हैं, सर सर्टिफिकेट. सो मैंने कहा कैसा सर्टिफिकेट? तो बोले सर इंटर्नशिप की है, वो कॉलेज में सबमिट करना. मैंने कहा कि आपने किया क्या है? मैंने कहा मैं बहुत लीनियंट रहा, मैंने आपसे बहुत सारी चीजें नहीं कही. आप 1 वीक रहे, आप कभी मिले कभी नहीं मिले. तो वो आफ्टर दैट फिर मैंने बोला कि मैं इस तरह से इंटर्नशिप पे किसी को नहीं रखूंगा. तो एक ये अभी एक ट्रेंड आ गया है, मैं जो देख रहा हूँ कि पीपल आर फैसिनेटिंग अबाउट कि हम हाई कोर्ट जाना है, वहां पे अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, वहां पे जाके घूमेंगे, इंटर्नशिप करेंगे एंड सर्टिफिकेट मिल जाएगा और बस चले आएंगे. सो वो चीजें देख के उनको लगता है कि ये प्रोफेशन बहुत आसान है, इतना अच्छा है. हाई कोर्ट में आना है, बढ़िया बढ़िया कैंटीन में खाना खाएंगे, कैफेटेरिया है, AIR कैफे हैं हर हाई कोर्ट्स में, हर जगह पे. और ऐसे ऐसी चीजें हैं, कुछ तो करना नहीं, बहुत आसान है पैसा कराना. बट वो भूल जाते हैं कि हाई कोर्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है. एंड आफ्टर पासिंग, मतलब जब आप कॉलेज से एक फ्रेश ग्रेजुएट होके निकलते हैं, या इफ यू आर थिंकिंग दैट कि आई कैन स्टार्ट माई प्रैक्टिस डायरेक्टली फ्रॉम हाई कोर्ट, कोई आपको हाई कोर्ट का केस क्यों देगा? वाई? हाई कोर्ट में कोई फैक्ट पे तो बहस होती नहीं है, वहां पे लॉ डिसाइड होता है. आपके पास कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशन चीज हुई है, आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है, तब आप वहां पर आते हैं. कोई सर्विस डिस्प्यूट है या क्रिमिनल केसेज में आप फर्दर चीजों के लिए आते हैं कि आपको बेल नीचे से नहीं मिली तो आप ऊपर आएंगे. तो वो सारी चीजों को वहां पर आने के लिए वहां पर ही सोचता है कि या तो किसी का एक नाम होता है, किसी की फीस बहुत ज्यादा होती है, कोई अपनी काबिलियत के लिए जाना चाहता है, बहुत सारी चीजें होती है. और आप अगर फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आप सीधे आके डायरेक्ट हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कोई क्यों देगा? तो मेरा मैसेज ये है सभी के लिए कि जो पर्टिकुलर आपका जो क्वेश्चन था, कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं या हाई कोर्ट में कर रहे हैं, आप अपनी इंटर्नशिप को प्रॉपर अपनी ड्यूटी समझ के करें. और अगर आपका सीनियर बहुत ज्यादा बिजी है, वो आपको टाइम नहीं दे रहा है, तो आप उससे खुद जाके पूछें, या आप उस चैम्बर में और भी सीनियर्स होते हैं, आप उनकी हेल्प लें. और इंटर्नशिप को इंटर्नशिप की प्रॉपर तरीके से करें, उसकी रिपोर्ट्स उस तरह से बनाएं. एक फॉर्मेलिटी मत करें कि आपको बस कॉलेज से बोला गया इंटर्नशिप करने के लिए, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग. ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर सीनियर, ट्राई टू लर्न फ्रॉम द हाई कोर्ट, ट्राई टू लर्न फ्रॉम द जजेस, वो कैसे बात करते हैं. एवरीथिंग यू कैन लर्न फ्रॉम. चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे आप किसी भी कोर्ट में हैं, वेयर एवर यू आर डूइंग इंटर्नशिप, वहां पर आपको प्रॉपरली वो सारी चीजें अगर लर्न करनी है, तो देन यू हैव टू बी फोकस. और वो फोकस होना पड़ेगा. एंड अगर आपको इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, और यही सबसे बड़ी चीज है कि आज जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं वो बोलते हैं कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत कुछ है. बट व्हाट यू डिड व्हेन यू वर स्टडिंग, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे तब आपने क्या किया, जब आप इंटर्नशिप कर रहे थे तब आपने क्या किया? जो वहां पर अच्छा करते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ये मेरा मतलब बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि वाइल डूइंग योर इंटर्नशिप व्हेन यू आर इन कॉलेज, आपको बहुत ही फोकस और कंसंट्रेट होना पड़ेगा उस समय. दैट्स वाई कि आप वो चीज़ों को लर्न करके आगे अपनी फ्यूचर की लाइफ को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, और आप उसी प्रोफेशन में, अगर आप लिटिगेशन में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें प्रॉपरली सीख के, और जो पढ़ाई कॉलेज में होनी है वो तो आपको पढ़ा दिया जाएगा. बुक्स यू कैन रीड ऑन योर ओन ऑल्सो, एंड टीचर कैन टीच एवरीथिंग. मतलब वट एवर रिटन इन द बुक्स वो आपको सब पढ़ा दिया जाएगा कॉलेज में. बट जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से मिलना है, वो आपको इंटर्नशिप के दौरान मिलता है. आपको जब कोर्ट में अपीयर होने का मौका मिलता है, जब आप सीनियर के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, उस समय भी यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न. उस समय भी अगर आपका फोकस कहीं मनी हुआ या कुछ और चीजें हुई, तो उस प्रोफेशन में आगे बढ़ना उन्हीं के लिए मुश्किल होता है. मैंने जो अभी अपने 2 केसेस आपको शेयर किए थे, कि इन RT केस आई पेड ऑल द एक्सपेंसेस फॉर माई केस.
I did not get anything from client. And in the writ against police official, in that case I got only 10,000 rupees. But मैं तब तक लड़ा जब तक मुझे एक फ्रूटफुल वहां से मुझे एक डिसीजन नहीं मिली। तो ये मैं इसमें ऐड इसलिए जरूर कर रहा था क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस तो हमारा फोकस होता है कि हमको एक अच्छा एक हैंडसम अमाउंट मिलना शुरू हो जाए। अमाउंट इज नेसेसरी, आई एम नॉट डिनाइंग कि अमाउंट इज नॉट नेसेसरी, एंड स्टार्टिंग में बहुत जरूरी होती है क्योंकि you have already spent a lot of money in your college while studying, and so then you thought ki now I am going to start my practice, so I need some money, so that we should not ask from our parents. But uske sath sath if you are ready for the hard work, if you are ready to learn from your senior, from your mentor and from your colleague also, so वो सारी चीजों के लिए अगर आप रेडी हैं, सो इस प्रोफेशन में स्काई इज द लिमिट, आप कहीं भी जा सकते हैं। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, मतलब लाइक मी, जो मैंने किया है, मतलब मैंने तो अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन जो भी मैंने अचीव किया, आई एम जस्ट टेलिंग यू, बट स्काई इज द लिमिट इस प्रोफेशन में बहुत कुछ करने के लिए। एंड एवरी डे वी लर्न, हम कोर्ट में एवरी डे वी लर्न करते हैं। अगर आज आप बोले मेरे से कि आज ही एक मेरा केस था कि आई वॉज सिटिंग इन द कोर्ट टिल 1:05, and after 1:05 I thought कि court is running very slow, so I can go outside. I went outside, and when I came back in the court, so that time court decided not to sit after lunch, and he decided all the application, and my application was listed. So आज की लर्निंग मेरी ये हुई कि टिल द एंड आपको कोर्ट में रहना है। अगर आपका केस लगा है, अगर आप नहीं है, तो कोर्ट कुछ भी कर सकती है, किसी भी टाइम जज का कुछ भी मूड हो सकता है। बोलते हैं ना कि जज कुछ भी कर सकता है। सो वो उनका मूड हुआ कि मतलब दे आर नॉट गोइंग टू, मतलब ही इज नॉट गोइंग टू सिट आफ्टर लंच। उन्होंने डिसाइड किया, एंड दे हैव डिसाइडेड ऑल द एप्लीकेशन एवरीथिंग। सो आज की लर्निंग एवरी डे वी लर्न। I guess this is a very strong message to all young lawyers who are connecting with us today, law aspirants, as well as people who have just started off in this field. Ki ethics has to be prioritized, and whatever little we are learning, court is a learning experience every day. What the books and a very hefty law course cannot teach us all throughout 5 years, a court can teach us in a few days and in a few minutes. So we have to just capitalize on that. And this is definitely a very special thing, which you also mentioned that आपने खुद सारा expenses उस टाइम पे बर्डन लिया था. That is just not for the money, it is about the intention, the way you have portrayed your social conscience, and that intention, it stands out as a perfect example for everyone who's starting out in this field, who will be looking up to this interview, who will be looking up to you as an example. Thank you, sir. We would proceed. It is quite related with the first gen lawyer problem. There is a very big connect in the legal industry, which we all understand from our very early days of legal schooling, that people who have good connections, they may secure better internship opportunities, or they may have a slightly upper hand in navigating the professional challenges. So coming from first gen families, what would be your advice to people who feel frustrated with this setup about the professional connections? This is specifically for the young students, that how do we secure professional relationships and networking in the legal field, especially when you are someone who has no one in the legal fraternity? इस क्वेश्चन का मैं आंसर एक इंसिडेंट के साथ करना चाहूंगा। अगेन आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरी टू शेयर कि रिसेंटली आई विजिटेड ऑफिस ऑफ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश at Allahabad. So I went there for my continuity certificate. Continuity certificate is required for the AOR exam. I went there and I applied for the continuity certificate. सो व्हाट आई शॉ देयर कि वहां पर लाइन लगी हुई है एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब वो लाइन ऐसी थी जैसे रेलवे स्टेशन पे टिकट के लिए लाइन लगती है, हॉस्पिटल में ओपीडी में लाइन लगती है, उस तरह से लाइन वहां लगी हुई थी एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा इतनी लंबी लंबी क्यों लगी हुई है लोग एडवोकेट बनने के लिए। और मैं उनको देख रहा हूँ कि मतलब बहुत गर्मी थी, लोगों के फेस पे स्वेटिंग हो रही है, लाइन में लगे हुए हैं, बैग टांगा हुआ है, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, मतलब यूपी के अलग अलग सिटी से आके वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए लगे हुए हैं। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज। मैंने कहा कि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि इस प्रोफेशन में पैसा नहीं है, प्रोफेशन में ये है वो है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए मारा मारी हो रही है। एंड इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन के लिए यू नीड टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट, एंड पीपल आर रेडी टू पे दैट अमाउंट टू गेट रजिस्ट्रेशन विद इन अ फ्यू डेज, and they are paying that amount to get registration. And मतलब I thought and I shared this story with people also कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि why are you eager to get your registration number so early and why are you, मतलब वो इतना उनके फेस पे वो दिख रहा था, जैसा लग रहा था कि बस एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन हो जाए और हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, हम कल से ही बहुत कुछ कर देंगे। तो मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी आई एंड आई आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम फ्यू स्टूडेंट्स। सो देन फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम वेरी रिमोट एरिया, यूपी के बहुत रिमोट एरिया से थे। एंड उनका जो आउटलुक था वो भी बता रहा था कि उनका फैमिली या फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी
बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैं उनके साथ बैठा। मैंने उनसे कहा आओ तुमको चाय पिलाते हैं और बैठ के बातचीत करते हैं। तो मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया। फिर उन्होंने दे स्टार्टेड टेलिंग कि सर कंपटीशन की तैयारी की, कुछ नहीं कर पाए तो सर लॉ कर लिया, आप सोच रहे हैं सर वकालत शुरू कर दें, इसी से कुछ कमाई हो जाएगी। तो वो जो एक थॉट था कि इसी से कुछ कमाई हो जाएगी, मैंने उनसे पूछा कि आपकी फैमिली में कोई एडवोकेट है? उन्होंने कहा नो सर कोई नहीं है। मैंने कहा यार फर्स्ट जनरेशन अमेरिकन। बट उनका जो बिलीव था, उनकी आंखों में एक स्पार्क था कि सर कुछ नहीं कर पाया तो इस प्रोफेशन में आके हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अभी भी वो बिलीफ है कि हम इस प्रोफेशन में कुछ कर सकते हैं। उसने मुझे बहुत टच किया कि काले कोट की ताकत पता है कि काले कोट जिसने पहन लिया वो भूखा नहीं रहेगा। तो जो आपका क्वेश्चन था कि मैं, मेरी तरफ से क्या एडवाइस है, जो मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो सोचते हैं कि हम किस तरीके से करें और कैसे स्टार्ट करें अगर हमारे अच्छे कनेक्शंस नहीं है, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है। और वन मोर थिंग, मतलब आई वुड लाइक टू ऐड, अगर आपने पढ़ाई भी अच्छे से नहीं की है एंड यू आर enrolled in bar council of any state, and after that भी you want to earn money, you want to earn name, fame and everything, तो उसके लिए आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, अगेन यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग। आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, वो बुक्स फिर से पढ़नी पड़ेंगी, वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सो जरूरी नहीं है आपके वो कनेक्शंस हों, आप कहीं भी किसी भी रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं। अभी रिसेंटली जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उनका भी एक एग्जांपल था कि बहुत ही हमारे साउथ के रिमोट एरिया से आए थे, और उनका भी जस्टिस नागार्जुना के साथ जब उनका रिटायरमेंट होता, उन्होंने बताया था वो कैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। जस्टिस पंथ का एग्जाम्पल है कि वो लोअर जुडिशरी से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तक गए थे। तो वो सारे एग्जाम्पल्स हैं कि ये जो बोला जाता है कि मेरे कनेक्शंस अगर नहीं है या मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं है, सो वी कैन नॉट डू। अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, वो करना चाहते हैं, और वो मेरे मुझे वहां दिख गया कि ऐसा नहीं है कि लोग जो है पीपल आर रसिंग की उनके कनेक्शंस हैं, या इस प्रोफेशन में हम इनरोल्ड होने के बाद हम जो है, किसी का मोटिव कुछ और हो सकता है, बट कुछ लोगों का बिलीफ अभी भी यही है कि सर अगर कुछ नहीं कर पाए तो हम इस प्रोफेशन में अच्छा कर सकते हैं। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि लोगों का वो जो बिलीफ अभी भी बचा हुआ है कि हम सर वहां पर रहते हैं और वहां पर हम छोटे छोटे केसेस इस तरह का काम करके भी। एंड वो 3 बच्चे थे, वो आज भी मेरी टच में हैं, रेगुलर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मेरे से एडवाइस लेते हैं। सर आज हमने ये किया, अगर वो छोटा सा एप्लीकेशन भी करते हैं ना, तो वो मेरे से पूछते हैं कि सर आज हमने ये किया एंड टुडे आई अर्न 100 रुपीज। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करके, मैं उनकी आज हेल्प कर पा रहा हूँ, मैं फोन पे उनकी हेल्प कर पाता हूँ, उनको एडवाइस दे देता हूँ, वो मेरे से कंसल्ट करते हैं केसेस। तो आप कहीं भी हैं, कैसे भी बैकग्राउंड से हैं, अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है इस प्रोफेशन में, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रांग कनेक्शन नेटवर्क, वो भी इस फील्ड की रिक्वायरमेंट है। बट विदाउट हैविंग स्ट्रांग कनेक्शन एंड नेटवर्क यू कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपके अंदर वो रीडिंग हैबिट है एंड आप इस फोकस्ड हैं उन सारी चीजों के लिए, सो अगेन आई वुड से कि स्काई इज द लिमिट, कि बहुत कुछ किया जा सकता है रिमोट एरिया में बैठ के भी, एंड किया है लोगों ने, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। सर आपका पूरा जर्नी ये शो करता है कि डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस इन डिफरेंट वेज एंड वी जस्ट हैव टू कैरी ऑन। सर टॉकिंग ऑन दीज लाइंस, हाउ डू यू थिंक दैट इन टुडेज जनरेशन लॉयर्स शुड अपस्किल देमसेल्व्स or lawyers should improve their skills? And as you are mentioning that there is no limit to learning, so what kind of upskilling do you think lawyers should go for, or how has upskilling helped you in your professional or personal trajectory? If you could just throw some light on it, sir. इट्स वेरी नेसेसरी इन एनी प्रोफेशन, आई वुड से इट्स वेरी नेसेसरी। ट्रेडिशनल तरीका जो था काम करने का, इस पे भी मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। अगेन आई हैव ए स्टोरी। सो देर इज ए डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, बहराइच। बहराइच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर दिस प्रोफेशन बिकॉज सो मैनी जजेस एंड एडवोकेट्स, लीडिंग एडवोकेट्स, दे केम फ्रॉम बहराइच। इन लखनऊ इट्स वेरी कॉमन, पीपल यूज टू आस्क कि आप बहराइच से तो नहीं है? So what I have seen in Lucknow, and I know them, and they are still, मतलब they are designated senior advocate in Lucknow High Court. So I have seen कि वो अपनी स्टोरी बताते हैं. They used to share कि when I came to Lucknow and I was having cycle and I was having 2-3 books and I came to Lucknow, I started practice at district court, and after that I joined the Fala senior and I joined that senior and I started my practice, and after that I started practice at High Court. सो दैट टाइम देर वॉज लेस पॉपुलेशन, एंड किसी पर्टिकुलर एरिया से या किसी एक एरिया में एक एडवोकेट आ जाता था, और उस समय बहुत सारी चीजें चलती थी कि लोग पूछते थे, इट्स वेरी कॉमन कि व्हाट इज योर प्रैक्टिस एरिया, लाइक
आप सिविल के वकील हो, या आप हिंदी में बोलते थे आप फौजदारी के वकील हो, या दीवानी के वकील हो। तो वो उसका एक एरिया होता था और उसमें वो एक महारत हासिल कर लेते थे एंड वो टॉप पे पहुंच जाते थे। अच्छा, वो उस टाइम पे वो इनकी स्टोरी बताना चाहूंगा कि ही यूज्ड टू से कि बहराइच से वो सिविल के वकील हैं तो उनके पास चले जाइए, क्रिमिनल का वकील है तो उनके पास चले जाइए। बट नाउ दीज थिंग्स आर, ये बहुत ही डिफरेंट हो गया अभी एरा। सो मेनी एडवोकेट्स आर कमिंग कंटिन्यूअसली, रजिस्ट्रेशन आर गोइंग ऑन, हर बार में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इतने सारे लॉ कॉलेज खुल गए हैं, रजिस्ट्रेशन इतना ज्यादा हो रहा है, एक से एक लर्नेड लोग आ रहे हैं। अब इट दीज थिंग्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट एरिया। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, सारी चीजें हो रही, लिटिगेशन बहुत है, और लिटिगेशन का टाइप्स बहुत चेंज हो गया। नाउ टाइप्स हैज बीन चेंज, अर्लियर ओनली क्रिमिनल एंड, इसीलिए नए नए लॉज आ रहे हैं, नए नए एक्ट पास हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में डे टू डे अमेंडमेंट हो रहे हैं। वो सारी चीजों के बारे में अभी वी कैन नॉट से कि आई ओनली प्रैक्टिस इन क्रिमिनल एरिया, आई ओनली प्रैक्टिस इन सिविल एरिया, आई ओनली डील विद द साइबर क्राइम केसेस। सो वी कैन नॉट से कि अभी ये ऐसा नहीं होता है। सो जो आपका क्वेश्चन था, अभी वो सारी चीजें चेंज हो गई, और अब स्किल करना इसलिए जरूरी है कि वो सारी बुक्स जो हमने पढ़ी थी, सीआरपीसी, आईपीसी, इवन अब तो लॉ भी चेंज हो गया हमारा अभी नया लॉ भी आ गया है। सो इफ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस, एंड जो ट्रेडिशनल एक मेथड है, जो ट्रेडिशनल तरीका चल रहा था, अगर उसको आप अब स्किल नहीं करेंगे, देन इस प्रोफेशन में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा। बिकॉज क्योंकि अभी इतने सारे कॉलेजेस खुल गए हैं, एनएलयू पहले नहीं था, अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन गई है, जहां पर ऐसा बोला जाता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं वहां से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन वहाँ के जो बच्चे जिनसे मैं मिलता हूँ, तो वो एक अलग ही क्लास उनका दिखता है। तो आई बिलीव कि वहां पर एक अलग तरह के स्टूडेंट्स वहां से निकल के आते हैं। तो अगर आप खुद को आप स्किल नहीं करेंगे, नई चीजों को नहीं सीखेंगे, तो इस प्रोफेशन में सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। क्योंकि जैसा एक और इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो मेरे सीनियर जिनके साथ मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, उनकी लाइब्रेरी आज की डेट में लखनऊ के अंदर सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। अगर इवन हाईकोर्ट जजेस को भी कोई बुक जरूरत पड़ती है ना, तो वो सोचते हैं कि उस चैम्बर में मिल जाएगी। और उनके पास बिफोर इंडिपेंडेंस के, उससे पहले के बहुत सारे एक्ट और सारी चीजें, और उनको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और आज भी वो बुक रेफर करते हैं। वो ही डू नॉट बिलीव इन कि ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लिया और उस पे हम वो बुक्स पे रेफर करते हैं। बट आज की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके पास ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन नहीं है, एंड इफ यू आर आर्ग्यूइंग इन हाई कोर्ट, सो यू कैन नॉट ask court ki kindly grant some time so I can bring my book from my chamber. You have a phone, you have internet, you can immediately just आप क्लिक करिए और आपके फिंगर्स पे सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। तो वो अप स्किल जो, अगर आपको वो चीजों से नहीं, अगर आप हैं कि जजमेंट, हाउ टू फाइंड जजमेंट, आपको सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपको उस चलाना नहीं आता है। सेकेंड थिंग, अभी जो अपनी स्किल में अगर और बात करूं, तो मैंने भी अपने आप को खुद अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया जिसका नाम लॉसिको है, और जिसको मैंने ज्वाइन किया 2022 में, और एक बूट कैंप के थ्रू ज्वाइन किया था, जहां पर बहुत सारी चीजें बताई जा रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी सुनने में। और मैंने वहां से ज्वाइन किया, और जब से मैंने वो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने अपनी स्किल्स को इन्हेंस किया, अपने नॉलेज को बढ़ाया। सो वहां पे मैं रॉकेट की तरह ऊपर गया हूँ। और ये मैं बार बार अक्सर अपनी बारे में बोलता हूँ कि मुझे लॉसिको से क्या क्या मिला। ऐसे बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। सो खुद को अगर अपलिफ्ट करना है, इसी प्रोफेशन में रहना है और आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए कंटिन्यू रीडिंग, और जो भी नए नए तरीके आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। कि अदरवाइज वो लिमिटेड एरिया में कि आप यू आर सेइंग कि मैं तो क्रिमिनल केसेज ही डील करता हूँ और मैं सिर्फ यही करूंगा, तो क्रिमिनल के एडवोकेट्स बहुत हैं मार्केट में, और दे आर कंटिन्यूअसली कमिंग, आ रहे हैं, आपसे भी कोई मास्टरमाइंड हो सकता है। तो आपकी जो फेस वैल्यू है वो कब तक बनी रहेगी? वो एक टाइम के बाद वो नीचे भी आप आ सकते हैं। इसलिए आपको जरूरी है खुद को अपलिफ्ट करना, खुद को अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए नया नया सीखना बहुत जरूरी है। और जो भी नए नए चीजें आ रही हैं मार्केट में इस प्रोफेशन के लिए, सो वो आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, तो आप कहीं ना कहीं आप पीछे करें रह जाएंगे इस भीड़ में। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे ही इस प्रोफेशन में एडवोकेट्स भी बढ़ रहे हैं, और मार्केट में सरवाइव करने के लिए आपको कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। आपके प्रोफाइल में there was this very fascinating aspect that you are also associated with Vipassana and you prioritize your mental spiritual well-being as important as your professional well-being. And in today's world we often tend to forget that, we often tend to lose our balance, we often tend to get all burned out and frustrated. What would be your personal advice
coming from a person who himself has prioritized mental spiritual well-being so much, what would be your advice to all? I would just like to end the interview at this note. I always say कि be grateful for each and everything you have in your life. This is the basic formula to remain balanced in your life. If you are grateful, the things given by universe, like you have a healthy body, you have parents, आपके सर पे छत है, if you have food in your plate, and one more thing I would like to say कि if you are not able to see things to be grateful, so just think if you are still breathing, then be grateful. अगर आप सांस भी ले रहे हैं ना, तो भी आप उसके लिए ग्रेटफुल रहिए कि 1 घंटे में आई थिंक 7,200 लोगों की डेथ हो जाती है एंड वी आर स्टिल अलाइव. अगर कुछ भी नहीं ग्रेटफुल होने के लिए दिख रहा है तो यही सोच लीजिए कि आपकी डेथ तो नहीं हुई. यू आर स्टिल ब्रीदिंग, तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए. एंड मैं भी पहले ऐसा था, देर वॉज ए टाइम मैं भी ऐसा था कि आई ऑलवेज यूज्ड टू कंप्लेंट लाइक मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है. मेरे साथ भी ऐसा था. लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड ग्रेटफुल होना, जब से मैंने शुरू किया, और ग्रेटफुल होने के लिए मैंने इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की. एवरी डे आई राइट 10 ब्लेसिंग्स. एवरी डे, कभी भी मिस नहीं करता. एवरी डे इन एनी एरिया. कभी अपने मोबाइल के लिए ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ, कभी अपने लैपटॉप के लिए लिखता हूँ, कभी इंटरनेट के लिए लिखता हूँ, कभी अपनी बॉडी के लिए लिखता हूँ, पेरेंट्स के लिए लिखता हूँ. तो एवरी डे आई यूज टू राइट 10 ग्रेटिट्यूड. मैं वो लिखता ही लिखता हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प करता है. कभी मुझे अब ये नहीं लगता कि मेरी लाइफ में किसी चीज की कमी है. तो फर्स्ट थिंग कि बी ग्रेटफुल. एंड सेकेंड थिंग कि ये जो एक कहते हैं कि हम ज्यादा काम करेंगे ज्यादा पैसा आएगा, मेरा ऐसा मानना नहीं. आई डू नॉट एग्री विद इट. और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि क्या पैसे पेड़ पे लगते हैं. तो मैं बोलूंगा कि हाँ, पैसे पेड़ पे लगते हैं. पैसे पेड़ पे लगते हैं, उसको तोड़ने की स्किल आनी चाहिए. वो पेड़ अपने आप आपको मिल जाएगा. और वो मैंने लर्न किया ऐसे कि विपसना मेडिटेशन, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा. मैं इसका फॉलोवर हूँ लास्ट 15 ईयर से. मैं इस मेडिटेशन को रेगुलर में 2 आवर्स मेडिटेशन करता हूँ रेगुलर. 24 घंटे में से मेरे 2 घंटे इस मेडिटेशन के लिए जाते हैं. और वो सारी चीजें मुझे अपनी इक्वानिमिटी को मेंटेन रखने में मुझे हेल्प करते हैं कि मैं अपने आप को इकोनिमस रख पाता हूँ. रीजन बिहाइंड दैट कि इस फील्ड में बहुत सारी निगेटिविटी होती है. एवरी डे हम बहुत सारी निगेटिविटी घिरे रहते हैं. सो उस निगेटिविटी को दूर करता है ये मेडिटेशन. और ग्रेटफुल होना चीजों के लिए, ये दोनों चीज जब साथ में मिल जाती हैं तो सबसे बड़ा बैलेंस बना रहता है कि मुझे काम करना है. आई नो माई लिमिट्स. मुझे कितनी देर काम करना है, मेरी सारी चीजें प्रायोरिटाइज हैं, वो उसकी एक लिस्ट मेंटेन है. मुझे उसके हिसाब से काम करना है कि मैं बहुत ज्यादा काम करूंगा तो इतना पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है. अगर मैं बैलेंस नहीं हूं, अगर मैं स्ट्रेस में हूं और मैं भाग रहा हूं, तो किसी ना किसी दिन या तो मैं कोई हेल्थ के कंसिक्वेंसेज आ जाएंगे या कोई और इशू मेरे साथ आ सकता है. इट्स वेरी कॉमन नाउ इट इज. एंड इस प्रोफेशन में बहुत सारे लोग इंटॉक्सिकेंट्स का यूज करते हैं. बहुत सारी चीजों की हेल्प मैं अपने हाई कोर्ट्स में देखता हूँ. हमारे हाई कोर्ट में स्मोकिंग जोन बने हुए हैं जहाँ पे लोग जाके स्मोक करते हैं. मुझे नहीं समझ में आता है कि मुझे इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी लाइफ में. एंड कि मैं ये सारी चीजों का सहारा लूं अपने स्ट्रेस या उसको करने के लिए, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होता हूँ. और वो सारी चीज़ें मुझे कभी मेरे स्माइल पे मुझे स्ट्रेस कभी नहीं दिखती. मेरा ट्रेवलिंग बहुत रहती है, और माई केस में मुझे बहुत ट्रेवलिंग करनी पड़ती है. और समटाइम्स पीपल यूज टू आस्क मी कि आप कैसे मैनेज करते हैं, हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग. इवन हमारे हाई कोर्ट में कुछ स्टाफ है, वो पूछते हैं कि सर कल तो आप वहाँ थे, दिल्ली में थे, कल आपका फोटो देखा था, आज आप लखनऊ में हैं, कल आप चंडीगढ़ में. सो हाउ डू यू मैनेज. ये सारी चीजों को बैलेंस रखने में विपसना मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है. आई एम नॉट सेइंग कि आप विपसना मेडिटेशन को फॉलो करें, बट हाईली रिकमेंड करता हूँ कि मैंने इसको फॉलो किया है. तो लाइफ में ग्रेटफुल होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है इन सारी चीजों में कि आप कैसे बैलेंस रह सकते हैं. और जब आप चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं तो यूनिवर्स आपको ऑलरेडी देना शुरू कर देता है. यूनिवर्स तो कहता है, यूनिवर्स के लिए सारे लोग सेम है. मतलब हम सब यूनिवर्स के वो एक इसी ब्रह्मांड में हम सारे लोग रह रहे हैं. लेकिन वो सब कुछ आपको देना शुरू कर देगा जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे. और एक स्टोरी शायद आपने सुनी होगी, आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद दैट स्टोरी, कि एक बंदा होता है, उसका गॉड के साथ कनेक्शन होता है. ये स्टोरी मैंने कहीं सुनी थी. और उसमें ऐसा होता है कि वो एक बंदा होता है, बहुत रिच होता है, उसके पास बहुत कुछ होता है, और एक होता है बहुत पुअर बंदा होता है. तो रिच होता है वो बोलता है कि आप गॉड से बोलो कि मुझे देना बंद कर दें. और जो पुअर वाला होता है वो कहता है कि मुझे कुछ दें, आप गॉड से बात करो. तो जब वो गॉड के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप, जो बंदा रिच होता है उसको एक मैसेज दे देना कि उससे बोलो कि मेरा
ग्रेटिट्यूड करना बंद कर दे, मैं उसको देना बंद कर दूंगा। और जो पुअर होता है उससे बोल देना कि ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कर दे, तो मैं उसको देना शुरू कर दूंगा। वही मैसेज जब वो जाके देता है तो कहता है कि मैं ये काम कभी नहीं छोड़ सकता, मुझे ऊपर वाले ने दिया ही इतना है, मैं आखिरी सांस तक ग्रेटिट्यूड करता रहूंगा। और जो पुअर होता है वो कहता है कि मैं किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड हूँ, उसने दिया ही क्या है। तो यही बस डिफरेंस है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस जब आप स्टार्ट कर देते हैं और ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे चीजों के लिए, लोगों के लिए, तो यूनिवर्स आपको अपने आप देना शुरू कर देगा। आपके पास कैसे जाएंगे, आपके पास मनी आएगा और बिना किसी आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए आएगा, और आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। तो ये दो चीजें हैं जो मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब जिसको फॉलो करता हूँ, और प्रायोरिटी मेरी रहती है। मेरे रिलेशन लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, माय पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। हम बहुत लाइफ को एंजॉय करते हैं। और जैसे 2024 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। इन द बिगिनिंग इन जनवरी आई विजिटेड फिलीपींस, और वो भी मैं लीगल केस, एक लीज डीड का मैटर था, उसके मैटर में मैं visit किया था। और वो केस भी मुझे एक यूएस के क्लाइंट से रेफर किया था, जिसका एक केस मैंने इंडिया में डील किया था। और अभी मुझे अभी अपकमिंग मंथ्स में फिर एक दो विजिट करने हैं, अब्रॉड मुझे जाना है। एंड इट वाज माय ड्रीम लाइफ। आई मैंने अपनी विश लिस्ट बनाई हुई है, और वो विश लिस्ट मैंने 2022 में बनाई थी। लॉसिको को ज्वाइन करना भी मेरी विश लिस्ट में था। उसकी फी को मैंने कैसे मैनेज किया, वो सारी चीज़ों को कैसे मैंने मैनेज किया, वो सारी चीज़ें, मेरी ड्रीम कार, मेरे जो चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैं आज अपनी विश लिस्ट को देखता हूँ, देख के करके मैं अपनी विश को काटता जा रहा हूँ, क्योंकि वो सारी फुलफिल होती चली जा रही है। तो अपनी ड्रीम लिस्ट जरूर बनाएं, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ सबको कि अपनी विश लिस्ट जरूर बनानी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ आपको पानी है, अगर आपको पता ही नहीं, आपको क्लियरिटी नहीं है, मेरा हेल्थ के एरिया में मेरी विश लिस्ट है, प्रोफेशनल एरिया की मेरी विश लिस्ट अलग है, मेरी रिलेशनशिप की विश लिस्ट अलग है, हर एक एरिया की विश लिस्ट मैंने बना के रखी है। और वो सारे मैं एक सक्सेसफुली मैं उन सारी चीज़ों को अचीव कर रहा हूँ, मुस्कुराते हुए कर रहा हूँ, और बिना किसी स्ट्रेस के कर रहा हूँ। कभी मुझे लगता ही नहीं मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है। एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, मैं रिकमेंड करता हूँ। द मैजिक रॉन्डाबर्न की एक बुक है, एंड एक और बुक है, 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड, एक ये बुक है। फ्लोरेंस लिटर की बुक है पर्सनालिटी प्लस, जिस बुक को मैं रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को सभी लोग पढ़ सकते हैं। एंड 5 लव लैंग्वेजेस एक बुक गैरी चैपमैन की है। ये बुक मैंने बहुत बार, ये सारी बुक्स जो मेरी हमेशा मैं मेरे लाइब्रेरी में मिलेंगी, मेरे रूम में मिलेंगी, मैं ऑलमोस्ट उनमें से कोई ना कोई बुक मैं कैरी भी करता हूँ जो हमेशा पढ़ता हूँ। सो बुक्स, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, इन सारी चीज़ों के ने कॉम्बिनेशन ने मेरी लाइफ को बहुत अच्छा बनाया। बहुत अबंडेंस है लाइफ में, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लॉसिको में मैं एक एक लोगों का, हर एक मेंटर्स का जिन्होंने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया। और आज की डेट में मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। वो मेरा पैशन है कि जो मुझे मिला है अब मैं और लोगों को वहां तक पहुंचा सकूं, लोगों की लाइफ में अपलिफ्ट कर सकूं, जिससे जो मुझे मिला है वो और लोगों को भी मिले। और आई होप कि ये इंटरव्यू से अगर कोई मैसेज किसी को भी मिलेगा, किसी को भी सक्सेस मिलेगी, या यहाँ से इस इंटरव्यू से कोई कुछ सीख पाएगा, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। सो थैंक यू सो मच आकाश, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैंने बहुत लेंथ में बोला, बहुत डिटेल में मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन And किया। we at Losico and Super Lawyers, we are grateful, sir, कि आपने इतनी बारीकी से सब कुछ समझाया हम लोगों को. I would like to express my immense gratitude कि सर आपने टाइम दिया हम लोगों को, आपने इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ समझाए, और for all your incidents, because we get to see a lot of formal interviews, but we do not get to see all these real life insights, these first hand insights कि क्या होता है. आज के इंटरव्यू में आई एम श्योर कि लॉ स्टूडेंट्स विल बेनिफिट, दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड कि नो मैटर फ्रॉम व्हाटएवर सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंस यू आर, you have contacts, you do not have contacts, you are a first gen, you are a fourth gen, anyone who has this determination to do something, leave an indelible impression and a mark, can do that. आज के इंटरव्यू से वी ऑल्सो नो द पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड रीडिंग टिल द लास्ट 5 लैंग्वेजेस का जो रेफरेंस आपने दिया, I can also personally relate with it. It's one of my favorites also. And most importantly, sir, the importance of wearing this neckband, importance of wearing this coat or blazer, gown, and going into the courts. Court and court is just not about money, mercenary interest, and our own selves. It is a larger interest. The very resonating thing which will leave with every one of us after this interview, one firstly should always be kala kot pehen liya to darna kya, in your words. And secondly is your very apt mention of the word that learned is used
always for the advocates. It can be missed out for one or two judges even, but it will never be missed out for advocates. Your story, which began from a person who had no inclination for law, had so many problems all around, had so many technical problems all around, starting from the trial court levels and today ending up at the international level, and miles to go, sir, miles to go. May the Almighty be always with you. And we just hope that in the way you got inspired by Kapil Sibal ji, one day we'll love to see your videos on that platform, inspiring many young lawyers like us. We are once again grateful. Thank you so much, sir. And Super Lawyers will be back again with another edition with more inspiring stories. Stay connected. Thank you so much. थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं दो लाइनें बोलना चाहूंगा। ये लाइन सबने सुनी होगी और अक्सर मैं भी सुनता था कि जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं तो लोग कुछ समय के बाद आपको गूगल पे सर्च करते हैं। एंड मैंने खुद में इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने का आज जो रिजल्ट्स मुझे मिल रहा है कि मेरे केसेस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए, लाइव लॉ में पब्लिश हुए, ट्विटर पे हुए। तो आज मैं ओपनली अपने कई बार क्लाइंट से मैं बोल देता हूँ कि यू कैन सर्च ऑन गूगल। तो मैंने खुद में इन्वेस्ट किया, कुछ समय दिया, अपनी स्किल्स को इन्हेंस किया, तो आज गूगल पे सर्च किया जा सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, आप खुद में इन्वेस्ट करने के लिए अगर रेडी हैं, वो इन्वेस्टमेंट मॉनिटरी भी हो सकता है, टाइम का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बट डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स तो आने वाले टाइम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much.